السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں روج فاطمہ۔ دعا ہے رب کریم قائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے پوری دنیا کو کورونا سمیت ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ابر رحمت انتظامیہ کی لاپرواہی کے سبب زحمت بن گئی۔ رحیم یار خان کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد بجلی ایسی غائب ہوئی کہ 2 دن بعد بھی بحال نہ ہو سکی۔ وابڈہ انتظامیہ نے غفلت کی انتہا ہی کر دی۔ ایک بارش نے رحیم یار خان کی وابڈہ انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا۔ 2 روز بیت گئے، رحیم یار خان کے شہری بجلی سے محروم ہے۔ علامہ اقبال ٹاؤن، سیٹلائٹ ٹاؤن، قذافی کالونی سمیت متعدد شہری علاقوں میں بجلی بحال نہ ہو سکی۔ 2 روز قبل بارش کے باعث ہونے والی فنی خرابیاں دور نہ کی جا سکی۔ بجلی کے گرے ہوئے پول اور ٹوٹی ہوئی تاروں کی مرمت نہ ہو سکی۔ کرنٹ لگنے کے باعث ایک شہری جان سے گیا، جبکہ 2 شدید زخمی بھی ہوئے۔ ادھر وابڈہ انتظامیہ کے مطابق متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کے لیے عملہ کام کر رہا ہے۔ سیفٹی کلیئرنس کے بعد بجلی بحال کی جائے گی۔ سکھر میں شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش جاری ہے۔ قیامت خیز گرمی اور دن رات لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کا دن کا چین اور رات کا آرام چھن گیا ہے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں حاجی ریاض۔ سیپکو کے وعدے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، ڈیٹیکشن بلز کا عروج ہے۔ گرمی آتے ہی سیپکو اہلکاروں کی جیبیں گرم ہو رہی ہیں۔ بوگز میٹر لگا کر بجلی چوری عروج پر ہے۔ آگ برساتا سورج اور بجلی بندش کے باعث تنگ و تاریک گھروں میں خواتین، چھوٹے بچوں اور مریضوں کی حالت خراب۔ گھروں اور مساجد میں پانی بھی ناپید، گھریلو خواتین سخت پریشان۔ دن رات بجلی کی غیر اعلانیہ ناروا لوڈ شیڈنگ اور رات بھر مچھروں کی بھرمار کے باعث لوگ آرام نہیں کر سکتے۔ سکھر شہر کے اندر لوڈ شیڈنگ بہت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ جو ایکسپریس فیڈر ہو چکے ہیں اس کے لیے بھی 2 گھنٹے 4 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے، اور جس کا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پورے سکھر شہر کے اندر لوڈ شیڈنگ جس وقت جتنی مرضی لے رہے ہیں، پوری اتنی سخت گرمی کے باوجود بھی ایکسین اے سی سے ہم ایکسین کو بار بار ہم نے پہلے بھی کہا ہے، اس کے باوجود بھی یہاں پوری لوڈ شیڈنگ بہت حد سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ خدارہ اس پہ اگر ابھی کنٹرول نہ ہو تو لوگ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں، اور ادھر احتجاج شروع ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پوری سکھر کی تاجر برادری بھی روڈوں پہ آئے گی۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہو چکا ہے، اور کئی گھنٹے اس وقت تو ویسے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ کاروبار اس وقت بڑا تکلیف دہ، اس کے باوجود بھی یہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں تباہ ہو گئی۔ بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور میڈیا پر خبروں کے باوجود بھی سیپکو کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ صارفین کا کہنا ہے کہ بجلی کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا تو اگلے مہینے سے بجلی بل جمع نہیں کریں گے۔ بجلی سپلائی بند اور بل کی غیر قانونی وصولی جاری ہے۔ جب بجلی نہیں تو بل بھی بند کریں۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جو کہ 10 سے 12 گھنٹے ہو رہی ہے۔ اب بتائیں عوام ہماری کہاں جائے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، وہاں بچے جو ہے بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ سیپکو کا یہ ظلم ہے کہ وہ آلریڈی جو ہے بوگس میٹر لگا کر بجلی چوری کر رہا ہے، اور اس کا جو آلریڈی ریڈنگ ہوتی ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ جو صارفین جو اپنا پورا بل ادا کرتے ہیں ان کے بلوں میں جو ہے ڈیڈکشن لگا کر جو ہے وہ آلریڈی جو ہے اس کے جو ہے وہ عام صارفین سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آلریڈی جو ہے اوور ریڈنگ کی جا رہی ہے، اور یہ اہلکار جو سائیکلوں پر سیپکو کے گھومتے تھے اب ان کی گاڑیاں اور بنگلے ہو گئے ہیں۔ ظلم کی انتہا تو یہ ہے جن علاقوں کو ایکسپریس کر دیا گیا تھا وہاں بھی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ظالمانہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صارفین بجلی بل کو بھتہ پرچی کہنے لگے۔ کیمرہ مین عدنان راجپوت کے ساتھ بیورو چیف حاجی ریاض کھوکھر، سچ نیوز سکھر۔ خانپور میں ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی۔ کراچی جانے والی کوئلہ برادر ٹرین کی 2 بوگیاں لائن سے اتر کر پلیٹ فارم پر آ گئی۔ امدادی کارروائی کے بعد ٹریک بحال کر دیا گیا۔ لاہور سے کراچی جانے والی کوئلہ برادر ٹرین کی 2 بوگیاں خانپور ریلوے اسٹیشن پر مین لائن سے اتر گئی۔ بوگیاں لائن سے اتر کر پلیٹ فارم پر آ گئیں۔ حادثے کے باعث ڈاؤن سائڈ کی مکمل ٹریفک بلاک ہو گئی۔ حادثے کے باعث ڈاؤن سائڈ کی ٹرینوں کو روک دیا گیا۔ امدادی کارروائی کے بعد ٹریک بحال کر دیا گیا۔ مرغی کے گوشت کی قیمتیں مہنگائی کا ریکارڈ بنا کر واپس کم ہونا شروع ہو گئیں، مگر ابھی بھی قیمتیں غریب آدمی کی پہنچ میں نہیں آئیں۔ ہارون آباد سے ارشد علی غوری کی رپورٹ دیکھیے۔
मुल्क के दूसरे शहरों की तरह हरुणाबाद में भी पिछले चंद माह में मुर्गी के गोश्त की कीमतें बतदरीज बढ़ती रही हैं। गोश्त की कीमतें पाकिस्तान की तरीके उबलान 550 रुपए फी किलो की सतह तक पहुंच गई थी। हुकूमती दावों के बावजूद रोज बरोज कीमतें बढ़ती रही थी। कीमतें बढ़ने की वजूहात में खुराक और चूजे की कीमतों में अचानक इजाफे के साथ साथ नाजायज मुनाफाखोरी भी शामिल थी। पिछले हफ्ते में मुर्गी की कीमतें 550 रुपए फी किलो से वापस कम होकर 300 रुपए तक आ गई हैं, मगर अभी भी गरीब आदमी के लिए काफी ज्यादा कीमत है। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि मुर्गी की गोश्त की कीमतें मजीद कम की जाएं ताकि आम मजदूर भी मुर्गी का गोश्त खा सके। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद। आपको महंगाई के हवाले से बताएं तो मुल्क भर में महंगाई का तूफान आ गया। इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। कबूला के शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे अनीस आमिर। इधर शहरों की तरह कबूला में भी इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात के रेट सफर आसमान पर पहुंच गए, जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट समेत दीगर अद्वियात 10 से 40% महंगी कर दी गई। अद्वियात महंगी होने पर शहरी शदीद परेशान, गरीब के लिए इलाज करवाना भी मुश्किल हो गया। ये मेडिसिन लेने आया था तो मुझे इन्होंने एक हफ्ते की मेडिसिन 560 रुपए की दी थी, लेकिन अब मैं मेडिसिन लेने आया तो इन्होंने मेरे साथ 700 रुपए की कहने मेडिसिन दी जाएगी। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, कम से कम अगर वो मेडिसिन सस्ती नहीं कर सकते तो बढ़ाएं तो ना इनकी कीमतें। हुकूमत अपील है कम से कम दवाई महंगी तो ना कर, सस्ती नहीं तो महंगी तो ना कर। हुकूमत होश के नाखन ले और इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात सस्ती करे और जो रेट्स बढ़ाए गए हैं उन्हें भी फौरी कम करे। कैमरा टीम के साथ उनीस आमिर भट्टी, सच टीवी, कबूला। मुल्तान के शहरी आटे की कीमत में इजाफे और नानबाइयों की रोटी की कीमतें बढ़ाने पर परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि रोटी का साइज और वजन भी कम होता है। आम आवाम के लिए पेट भरकर खाना खाना भी मुहाल हो गया है। अहमद काशिफ रिपोर्ट करेंगे। और गिरदो नवाह में आटे की कीमतों में इजाफा और उसके बाद नान भाइयों की जानिब से रोटी की कीमत में किया गया इजाफा आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बना हुआ है। गरीब आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। पहले रोटी 7 रुपए की थी या 10 रुपए की, गुलशन मार्केट में चले जाओ वो बल्कि बाज़ जगह पे 12 रुपए की दे रहे हैं। ठीक है, तो अवाम बड़ी टेंशन में, बहुत ज्यादा टेंशन में। दुकानदार हजरात की जानिब से भी सफेद आटे की मुंह मांगी कीमतें तलब की जाती हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा मिलता है, ना ही घी और चीनी। अवाम तंदूरों से महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर है। 10 किलो वाला थैला मिलता है वो भी महंगा मिल रहा है, इसलिए अब क्या करें, अब आवाम कहाँ जाए। तंदूर मालकान का कहना है कि आटा महंगा मिलने की वजह से वो भी कीमत बढ़ाने पर मजबूर है। आवाम 5 रुपए रोटी मिला था, आटा भी सस्ता मिला था, रोटी सस्ती भेजो। आवाम का मुतालबा है कि आटे और अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी की जाए ताकि पेट भर खाना नसीब हो सके। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। जैकबाबाद में कोरोना वैक्सीन गायब हो गई। शहरी परेशान हो गए। सरकारी मुलाजमीन ने वैक्सीन की फराहमी का मुतालबा कर दिया। जैकबाबाद के सिविल अस्पताल में कायम कोरोना वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन की 3 दिन से अदम दस्तयाबी की वजह से सरकारी मुलाजमीन समेत शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं मगर अस्पताल अमला वैक्सीन ना होने का बोलकर वापस भेज देता है। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस जारी किया है कि जो वैक्सीन लगाएगा उसको तनख्वाह मिलेगी, जिसको जो नहीं लगवाएगा उसको वैक्सीन को तनख्वाह उसकी ID बंद की जाएगी। हम 3 दिन से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, वहाँ से भी हम ऑफिस से इजाजत लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। 3-4 दिन पहले आए, बोले वैक्सीन है ही नहीं, फिर अभी आए हैं, अभी भी बोल रहे हैं वैक्सीन नहीं है। सरकारी मुलाजिम कहते हैं एक तरफ सिंध हुकूमत ने ऐलान कर रखा है कि वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह बंद कर दी जाएगी, दूसरी जानिब अस्पताल में वैक्सीन ही मौजूद नहीं। शहरियों समेत सरकारी मुलाजिमीन ने मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले और कोरोना से बचाव की वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाए। टोबर टेक्सिंग में सिटी अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में अमला गायब हो गया, जिसके बायस वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट करेंगे। टोबर टेक्सिंग में हुकूमत की जानब से शहरियों को कोरोना वबा से बचाव के लिए वैक्सीन सेंटर बनाए गए। सिटी अस्पताल में बनाए गए वैक्सीन सेंटर में रोजाना सैकड़ों अफराद वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं। वैक्सीन सेंटर में 7 काउंटर बनाए गए हैं जहां अमला गायब है और शहरी टोकन के हसूल के लिए घंटों इंतजार करते हैं। 100 से 150 लोग जो हैं टोकन के हसूल के लिए वेट कर रहे हैं। 1 से 1.5 घंटा हो गया है। जो हजरात साहब ने टोकन देना है उनकी सीट खाली है, ये सीट है उनकी, और वो अंदर जाके बैठे आराम कर रहे हैं। उनके एक साथी से पूछा तो वो कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब से जाके बात कर लें। ये हॉस्पिटल की इंतजामिया या MS के लिए भी सवालिया निशान है कि ये क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं। हमें 2 घंटे हो गए, हम इनका इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 31 तरीक से हम परेशान हैं। 31 से कर रहे हैं, कल है, परसों है,
आज भी हमें कह रहे हैं 2 बजे के बाद आना। शहरी और समाजी हलकों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सिटी अस्पताल के कोरोना सेंटर में तजर्बाकार अमला तैनात किया जाए और गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, तोबटे। कबीरवाला के शहर अब्दुल हकीम में वैक्सीन सेंटर न होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने इंतजामिया से वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने का मुतालबा कर दिया। चौधरी राहिल रियाज रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुल्क भर में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है, मगर कबीरवाला के शहर अब्दुल हकीम में लाखों नफीस आबादी और तमाम तरतीबी सहूलियात होने के बावजूद ताहाल वैक्सीनेशन सेंटर कायम न किया जा सका है। इसकी वजह से शहरी लंबा तरीन सफर तय करके खानेवाल या कबीरवाला वैक्सीनेशन सेंटर का रुख करने पर मजबूर हैं। हमारा अब्दुल हकीम शहर जो है 2.5 लाख आबादी पर मुश्तमिल शहर है और यहाँ तक अभी तक वैक्सीन सेंटर नहीं कायम नहीं किया जा सका। हमारा डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा है कि यहाँ पे जल्द से जल्द वैक्सीन सेंटर कायम किया जाए। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से हमारा सच न्यूज़ के तवस्सुत से मुतालबा है कि अब्दुल हकीम अस्पताल में कोरोना वैक्सीन सेंटर जल्द से जल्द कायम करके लोगों को रिलीफ दिया जाए। गर्मी की शिद्दत की वजह से बुजुर्गों औरतों का वैक्सीनेशन करवाने के लिए तवील तरीन सफर करना इंतहाई मुश्किल अमल है। कबीरवाला के शहर अब्दुल हकीम में ताहाल वैक्सीनेशन सेंटर कायम ना किया जा सका है। यहाँ के शहरियों ने हुकूमत वक़्त से और इंतजामिया खानेवाल से ये पुरजोर मुतालबा किया है कि शहर अब्दुल हकीम में जल्द से जल्द वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया जाए ताकि इस मोजी मर्ज से जल्द छुटकारा हासिल किया जा सके। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहिल रियाज, सच न्यूज, कबीरवाला। सिविल डिफेंस शांगला के रजाकारों ने जिले भर में इंसदाद कोरोना मुहिम शुरू कर दी। सिविल डिफेंस के एहलकारों ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस पर रिपोर्ट करेंगे खबर अली। बात करेंगे आज पाकिस्तान के खूबसूरत शहर एबटाबाद की, जहां कई खूबसूरत मकामात मौजूद हैं, जिनमें शिमला पहाड़ी भी एक खास मकाम रखता है। एबटाबाद में दाखिल होने वाले सियाह सबसे पहले शिमला पहाड़ी का रुख करते हैं। सच टीवी से गुफ्तगू करते हुए सियाह खतून ने कहा, हुकूमत ने यहाँ पे बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट दिया और एबटाबाद के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन पिकनिक पॉइंट ये शिमला है। और मैं सबको कहूँगी कि यहाँ पर आए, एंजॉय करें। यहाँ बच्चों के लिए बड़ी अच्छी पब्लिक प्लेस है और स्पेशली वो लोग जो एबटाबाद से बाहर है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की ठंडी हवाएं हो, जहाँ पे ऐसा ही सारा मौसम हो और इस तरह की चीजों को देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आए। एबटाबाद में दाखिल होने वाले सियाह सबसे पहले शिमला पहाड़ी का रुख करते हैं और यहाँ के खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होते हैं। बच्चे बूढ़े सभी यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ सईद खबर अली शाह, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, हजारा डिवीजन। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के बाद जारी है। 24 घंटों के दौरान वायरस मजीद 84 जिंदगियां निकल गया। जाम बहक होने वालों की मजमूई तादाद 21,189 हो गई। 1,923 नए कोरोना केस सामने आए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 3.8% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,923 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,30,511 हो गई। पंजाब में 3,41,789, सिंध में 3,22,350, खैबर पख्तूनख्वा में 1,34,072, बलोचिस्तान में 25,589, गिलगित बल्तिस्तान में 5,629, इस्लामाबाद में 81,626, जबकि आजाद कश्मीर में 19,556 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 84 अफराद जाम बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 31,189 हो गई। पंजाब में 10,241, सिंध में 5,105, खैबर पख्तूनख्वा में 4,135, इस्लामाबाद में 763, बलोचिस्तान में 287, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आजाद कश्मीर में 551 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में अब तक 1,34,71,172 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50,393 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,60,385 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,452 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि घोटकी की बाहिम्मत बहनें बूढ़े वालिदैन का मजबूत सहारा बन गईं। मोटरसाइकिल चलाने से लेकर घर के काम काज और खेती बाड़ी में वालिद का हाथ बटाती हैं। घर समेत छोटे बहन भाइयों को भी संभालती हैं।
सिंध के शहर घोटकी की तहसील ढहकी में बाहिम्मत लड़कियां अपने बूढ़े वालिद का सहारा बन गईं, जिन्होंने मर्दों के कामों की भी जिम्मेदारियां अपने कांधों पर उठा ली। 15 साल फरजाना और 12 साल नादिया शेर मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शा चलाकर अपने बहन भाइयों को मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ने समेत मवेशियों के लिए चारा लेने जाती हैं। लड़कियों के वालिद का कहना है कि उनकी बेटियां औरत होने पर फख्र महसूस करती हैं। उन्होंने बच्चियों की खुशी की खातिर मोटरसाइकिल सीखने की इजाजत दी। ये है ना कि दिमाग पाजे कॾहिं किरी रहा गाह खणी दिया माल जो है जो असां घर ई माण्हू ॿाहिरां ॾीजा मां कुराड़ो आहे न हले सघंदो हथ लुॾा आहिनि इहा वेंदी आहे खणी ईंदी आहे और मोटरसाइकिल फुल हलाए थी। बाहिम्मत बहनें कहती हैं कि लोडर रिक्शा और मोटरसाइकिल चलाने समेत खेती बाड़ी का काम भी खुद करती हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो ट्रैक्टर भी चलाएं। ॿार ॾेखारींदा आहियूं सामान वग़ैरह खणी ईंदा आहियूं गाह खणी ईंदा आहियूं टटकर हलाईंदा आहियूं रश्को हलाईंदा आहियूं भाइटी आहे भाउ आहे उहो स्कूल छॾे ईअं स्कूल परे आहे माल जो भी गाह भी फटे ते जेको स्कूटर थींदा उन्ही ते भी खणी या गाह फटे ते। सिंध के कबायली इलाके में लोगों की परवाह किए बगैर ये बाहिम्मत लड़कियां दूसरी खवातीन को भी बाइक चलाने की तरगीब देने की ख्वाहिशमंद हैं। फरजाना और नादिया ने बाहिम्मत बनकर सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए साबित कर दिया कि वो मर्दों से किसी सूरत कम नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और सूबाई वजीर रिलीफ मोहम्मद इकबाल वजीर ने मीरान शाह में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने शुमाली वजीरिस्तान का दौरा किया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मीरान शाह में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर रिलीफ मोहम्मद इकबाल वजीर के मुतालबे पर वजीर दाखिला ने मीरान शाह के लिए नादरा के 2 मोबाइल वैन फराहम करने के अहकाम भी जारी किए। नादरा सेंटर में खवातीन स्टाफ को भी तरबियत देकर भर्ती किया जाएगा। 2 नादरा की गाड़ियां शुमाली वजीरिस्तान पहुंच जाएंगी जो कि घर की दहलीज पर आम आवाम के लिए सहूलियात फराहम करेंगी। मानावाला के अवाम की सुनी गई। अरसे दराज से टूट फूट की शिकार सकड़ सड़क को असर नौ तामीर कर दिया गया जिस पर मानावाला के शहरी खुश दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे मियां शेर मोहम्मद। मानावाला का ननकाना रोड जो लारी अड्डा से लेकर सेम नाला तक 20 साल से टूट फूट का शिकार था। इस रोड को मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया गया है। इस रोड पर गवर्नमेंट हाई स्कूल, सिविल अस्पताल, थाना मानावाला और मुतअद्दिद सरकारी इदारे मौजूद थे, जिसको चेयरमैन टैप्टा राना अली सुलेमान की खसूसी कागजों से ये रोड को मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया गया है, जिस पर मानावाला के शहरी बहुत खुश दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ है इस हवाला से। मानावाले का जो रोड अरसा दराज से 20 साल से जो टूट फूट का शिकार था, उसे इंतजामिया का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिसने इसे दोबारा कारपेटर रोड बनाया है और काफ़ी आवाम के लिए मुश्किलात थी वो अब तकरीबन ठीक है। अब रोड भी बहुत अच्छा बना दिया गया है। शहरी जो ये रोड तमीर होने से बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और मानावाला के शहरियों ने चेयरमैन टैप्टा राना अली सुलेमान और सब इंजीनियर टाउन कमेटी मानावाला मिर्जा आबद तुफैल बे का शुक्रिया अदा भी किया है। मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज, मानावाला। गैर कानूनी कारोबार करने वालों की शामत आ गई। जहानिया में गैस रिफिलिंग करने वाले दुकानदारों को धर लिया गया। इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ अब नहीं चलेगा। जहानिया पुलिस और सिविल डिफेंस ने शहर में गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर गैस रिफिलिंग करने वाले 4 दुकानें सील कर दी। सिलेंडर और गैस रिफिलिंग वाली मशीनें कब्जे में ले ली और FIR दर्ज कर ली गई। पुलिस और सिविल डिफेंस एहलकारों ने अज़्म किया कि गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। लैया के इलाके चौक आजम में पुलिस की कार्रवाई। मुर्दा मुर्गियां फरोख्त करने वाले गिरोह गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने 1 मन से ज्यादा मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली। जहूर दुर्रानी रिपोर्ट करेंगे। लैया के नवा इलाका चौक आजम में खुफिया इदारे की इतला पर कार्रवाई करते हुए चौक आजम पुलिस ने 1 मन से ज्यादा मुर्दा मुर्गियां बरामद करते हुए इस मकरूद धंधा में मुलव्वस 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान को थाना चौक आजम मुंतकिल कर दिया गया, मगर अचंभे की बात तो यह है अभी तक महकमा फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक ये तयन करने में कामयाब ना हो सके कि कार्रवाई किस इदारे ने करनी है। राब्ता करने पर महकमा लाइव स्टॉक का मौक़िफ़ था मुर्दा मुर्गियां बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई महकमा लाइव स्टॉक के अख्तियार में नहीं। ये कार्रवाई महकमा फूड अथॉरिटी सेक्शन 23A और 23B के तहत ही कर सकती है। महकमा फूड अथॉरिटी से राब्ता करने और पैगामात दिए जाने के बावजूद कोई जवाब न मिल सका। जराये के मुताबिक मुल्जिमान के सियासी असर और रसूख के सबब दोनों महकमे कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। शहरियों की जानिब से सियत के दुश्मनों के खिलाफ अरबाब अख्तियार से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुर्रानी, सच न्यूज, लैया।
संबड़ियाल मॉडल पुलिस स्टेशन की हदूद में डाकुओं ने डेरे डाल लिए। बढ़ती वारदातों ने शहरियों को खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया। संबड़ियाल के नवाही इलाका गुडियाला से अहमदाबाद रोड पर डाकुओं ने नाका लगाकर अहले इलाका को लूटना मामूल ही बना लिया। मुसल्ला डाकू गाड़ियों पर फायरिंग करते हैं और मुसाफिरों से नकदी और कीमती अशिया लूट कर हाथ पांव बांधकर खेतों में फेंक देते हैं। शहरियों ने मुतादिद बार रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई न हुई। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए डीपीओ सियालकोट से अपील की कि संबड़ियाल में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए और शहरियों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। शहरियों को इंसाफ फराहम करना अव्वलीन मकसद है। डीपीओ भक्कर ने वाज़ेह कर दिया। डीपीओ ऑफिस में हफ्तावार खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। नासिर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक डीपीओ बकर राना ताहिर रहमान खान ने हफ्तावार की बुनियाद पर अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी का मकसद वहाँ की आवाम के मसाइल को सुनना और उनका मुनासिब हल और बर वक्त कार्रवाई और जल्द अज जल्द इंसाफ के तकाजों को पूरा करना है, ताकि अवाम उन्नास को इंसाफ उनकी दहलीज पर पहुँचाया जा सके। खुली कचहरी का मकसद लोगों को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है और हम आज ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कर रहे हैं, वरना हम तहसील हेडक्वार्टर्स पे भी जाके खुली कचहरियाँ होल्ड करते हैं। लोगों ने अभी देख ही लिया दोस्तों ने कि सारे लोग इजी एक्सेस है, जो आ जाए जिसका जो भी मसला हो वो खुले आम बात कर सकता है, अपना मौक़िफ़ बयान कर सकता है। ज़्यादातर आपने देखा कि लोगों की लड़ाई झगड़े की थी, एक दो पुलिस के खिलाफ थी और कुछ माली मामलात की थी लेन देन के हवाले से। तो क्राइम जिस तरह आप जानते ही हैं कि बाकी ज़िलों की तरह भक्कर में भी मिसलेनियस है, हर किस्म का है, तो उनके मुताबिक हम क्राइम के मुताबिक उसका डिस्पोजल करते हैं। डीपीओ बकर राना ताहिर रहमान खान का मजीद कहना था कि शहरियों को इंसाफ फराहम करना हमारा अव्वलीन मकसद है। तमाम दरखास्तों का खुद फीडबैक लेने का आज़म रखते हुए किसी भी गरीब शहरी पर ज्यादती नाकाबिले बर्दाश्त होगी। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच टीवी, भक्कर। माहौलियात का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माहौल को साफ शफाफ करना है। राशिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। कुराए अर्ज पर जिंदगी की इब्तदा से ही इंसान और माहौल का गहरा ताल्लुक है। कुदरत ने इंसानी जरूरत की तकमील का सामान गिरदोपेश के माहौल में रखा। साफ सुथरा माहौल जिंदगी की बका का जामिन है, जिसका एहसास मालूम होता जा रहा है। इस एहसास को जिंदा करने और फितरी माहौल की बका के लिए हर साल माहौल का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन की मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और दीगर अफसरान ने पौधा लगाते हुए कहा कि माहौल को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं। लोगों से भी गुजारिश है, ये जो गर्मी है या जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, इनसे महफूज और अपने आप अपना जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको बेहतर रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम सब अपने अपने हिस्से का पौधा लगाएं, ताकि आने वाली नस्लों को बेहतरीन माहौल फराहम किया जा सके। आज के दिन को मनाने का मकसद माहौल को दरपेश खतरात और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरा टीम कैमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। कौसक सुरंग चमन का तारीखी विरसा है, जिसकी बुनियाद 1888 में रखी गई। ये तारीखी सुरंग इंतजामिया की अदम तवज्जो के सबब खस्ताहाली का शिकार है। चमन की तारीखी सुरंग कोयक को एशिया की सबसे बड़ी सुरंग कहा जाए तो गलत ना होगा। इस तारीखी सुरंग की बुनियाद 1888 में रखी गई और 1891 में मुकम्मल हुई। इस सुरंग से चमन मुसाफिर ट्रेन 12 मिनट का फासला तय करके गुजरती है। मौसम गर्मा में इस टनल पर दूर दराज इलाकों से लोग पिकनिक मनाने आते हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान चमन सदर अहमद खान, हम ये मुतालिबा करते हैं बलूचिस्तान हुकूमत से, DC साहब से कि यहाँ पिकनिक पॉइंट जो है बिल्कुल ना होने की बराबर है। यहाँ एक पिकनिक पॉइंट है कोशक टिनर, वहाँ पे हम लोग ये मुतालिबा करते हैं कि यहाँ पे वो पानी का बंदोबस्त किया जाए और उसके साथ साथ वो जो है लाइट का बंदोबस्त किया जाए। हम लोग जो है वहाँ जाते हैं पिकनिक बनाने। चमन में आप सबको पता है कि पिकनिक पॉइंट यहाँ है भी नहीं, एक ही कोशक टिनर है, उसमें जो है पिकनिक पॉइंट है। हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा करते हैं कि वहाँ सहूलत दिया जाए आवाम को कि यहाँ सैर व तफरी के लिए वहाँ जाए। ये तारीखी सुरंग इंतजामिया की अदम तवज्जो के सबब देखभाल से महरूम है। यहाँ तफरी के लिए आने वाले शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस सुरंग की मुरम्मत का काम बाकायदगी से किया जाए, ताकि मुल्क के इस तारीखी असासे को महफूज किया जाए। रसीले, मीठे और जायकेदार पीलू पक कर तैयार। जंगली दरख्त अंगूरी फलों से भर गए। पीलू के दरख्त कुदरत का करिश्मा है, जो बगैर पानी और खाद के सहरा में हरे भरे रहते हैं।
सिंध में पीलू पक गए। जिला खैरपुर के सहराई इलाके नारा में पीलू के पेड़ अंगूरी फलों से लद गए। खुश्क साली में जंगी रसीला फल इलाका मकीनों के लिए नेमत से कम नहीं। पीलू एक ऐसा खुरदरो और सख्त जान दरख्त है जो सहराई थर में शदीद खुश्क साली के बावजूद भी हरा रहता है। यही नहीं, खुश्क साली के मौसम में इसकी शाखें अंगूर नुमा फलों से लद जाती हैं। मैरून, गहरे सुर्ख और सफेद रस भरे इन फलों की साख्त मोती के दाने के बराबर और जायका मीठा है। सहरा की ये सौगात शौक से खाई जाती है। पीलू के इस रसीले फल को थरी अंगूर भी कहा जाता है, जिसे इलाका मकीन मार्केट में फरोख्त भी करते हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो पाकपतन के शहरियों ने सोलर बैटरी पर चलने वाले एयर कूलर खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे चौधरी तारिक अली। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो पाकपतन के शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए और ठंडक हासिल करने के लिए 12 वाट और सोलर बैटरी पर चलने वाले एयर कूलर खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों की बड़ी तादाद एयर कूलर खरीद रही है। इस हवाले से शहरियों का कहना है गर्मी बहुत है, इसलिए ना ये एयर कूलर लेने आए हैं और ये प्लेट पे भी चल जाता है। लोड शेडिंग की वजह से ना गर्मी में कमी करता है। ये गर्मी की शिद्दत इतनी है कि अब एसी का बिल तो दिया नहीं जाता, इसीलिए 12 वोल्ट का कूलर लेने आए हैं। बैटरी पे भी चल जाते हैं और सोलर प्लेटों पे भी चल जाते हैं। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है हम गर्मी से बचने के लिए एयर कूलर खरीद रहे हैं ताकि ठंडक रहे। कैमरामैन दबी के साथ तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। बहावलपुर का लाल सोहनरा नेशनल पार्क पाकिस्तान की मशहूर तफरीह गाहों में से एक है। इस पार्क में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे पाए जाते हैं। वहीं ये पार्क काले राजहंस का भी मस्कन है। इस पर रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ। लाल सोहनरा नेशनल पार्क जो कि पाकिस्तान भर में मशहूर है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के परिंदे पाए जाते हैं, वहीं पर काले राजहंस का भी मस्कन है। लाल सोहनरा नेशनल पार्क में लोगों को अपनी तरफ खूब मुतवज्जा करता है। ये परिंदा ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमेरिका में पाया जाता है, जो कि खोल की सूरत में रहना पसंद करता है। झीलों के किनारे अपना घोंसला जमीन में गहरी जगह बनाता है। नर मादा मिलकर घोंसला बनाते हैं। इनके अंडों की तादाद 5 से 7 होती है, जो कि नवंबर तक जनवरी में देते हैं। अंडे सीने का दौरानिया 35 दिन होता है। लाल सोहनरा नेशनल पार्क में इससे देखने दूर दराज से लोग आते हैं। कैमरामैन टीम के साथ राशिद लतीफ लक, सच न्यूज, लाल सोहनरा। मुश्कपुरी टॉप को गलियात का सबसे खूबसूरत मकाम कहा जा सकता है। कुदरती हुस्न से मालामाल मुश्कपुरी टॉप मिराजानी टॉप के बाद मरियो गलियात के इलाके की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। सुरमई बादलों से ढके सरसब्ज जंगल ने उसे पुर इसरार बना रखा है। सरसब्ज बुलंद पहाड़, रुई की तरह हवा में उड़ते बादलों के टुकड़े, शफाफ नीलांबर, सूरज की आंख बचोली, रोड के अतराफ में बंदरों की मस्तियां, कोयल की दिलरुबा आवाज और दीगर जंगली हयातात यहाँ आने वालों को मसहूर कर देते हैं। जिले चकवाल के इलाके ढडियाल में दरबार इसहाक नूरी पाक हमदानी 300 साल से ज्यादा अरसे से मौजूद है। मुल्क भर से जायरीन की बड़ी तादाद आज भी अकीदत के फूल नछावर करने यहाँ आती है। आसिफ अली रिपोर्ट करेंगे। नूरी पाक हमदानी यकम रमजान 893 हिजरी बरोज जुम्मा को पैदा हुए और 122 साल की उम्र में नारन सईदा में 1050 हिजरी ज़िकात के महीने में विसाल हुआ। बादशाह शेर शाह सूरी, ज़हीरुद्दीन बाबर, जलालुद्दीन अकबर आपके मुरीदैन में शामिल थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नस्ब में थे। आपके अबो अजदाद सैयद वली हमदानी ताजिकिस्तान के शहर खतलान में रहते थे। वहीं से हमदानी सादात का ये सिलसिला शुरू हुआ और अब भी ढडियाल दरबार बाबा शाह इसहाक नूरी पाक पर सरकार की 13वीं पुश से सैयद मोहसिन शाह हमदानी जो दरबार की देखभाल के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। सालाना उर्स जो कि पिछले कई सालों से दहशतगर्दी और कोरोना जैसी हुकूमती पाबंदी के तहत नहीं मनाया जा रहा। सालाना उर्स के मौके पर दरबार पर कवाली, बैलों के करा, कबड्डी मैच जैसे मुकाबले मुनक्कद करवाए जाते रहे हैं। अपने मुर्शद की तरफ से दिए गए लक़ब नूरुल उम्मत की वजह से नूरी पाक हमदानी के नाम से जाने जाते हैं। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली, सच न्यूज, ढडियाल।
कमालिया शहर ने एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। 14 साल अब्दुल मन्नान ने नेशनल जूनियर बैडमिंटन अंडर 17 चैंपियनशिप मुकाबला जात में अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालिया शहर ने बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। कमालिया से तल्लक रखने वाले 14 साल अब्दुल मन्नान ने नेशनल जूनियर अंडर 70 बैडमिंटन चैंपियनशिप मुकाबला जात में अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। बैडमिंटन के ये मुकाबला जात 4 सद्दा में मुंतखब हुए, जिसमें पाकिस्तान भर से हजारों खिलाड़ियों ने शिरकत की और 32 खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया, जिसमें अब्दुल मन्नान ने अव्वल पोजीशन हासिल की। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। मैं पिछले साल अंडर 16 रनर अप था। इस साल मैंने मेहनत की और मेरे कोचेस की मेहनत थी और इस साल मैंने टूर्नामेंट जीता और हुकूमत सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह कमालिया का नाम और इंटरनेशनल लेवल तक नाम रोशन करूंगा। घर वापसी पर दोस्त अहबाब की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। अब्दुल मन्नान इससे पहले भी कई ट्रॉफियां और इनाम जीतने का एजाज हासिल कर चुके हैं। 11 साल की उम्र में तहसील कमालिया और डिस्ट्रिक्ट ओवरटेकिंग बैडमिंटन मुकाबला जात में अव्वल पोजीशन और नेशनल जूनियर अंडर 16 में सेकंड पोजीशन और कायदे आजम 2021 में थर्ड पोजीशन हासिल कर चुके हैं। अब्दुल मन्नान का कहना है कि ये सब उसके कोच की मेहनत का नतीजा है और वो बेहद खुश है कि उसने ये एजाज हासिल करके अपने मुल्क और शहर का नाम रोशन किया है। अगर हुकूमत वक्त ऐसे जवानों की सरपरस्ती करे तो वो इंटरनेशनल लेवल तक मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। खैरपुर टामेवाली में फलों के बादशाह आम की एंट्री हो गई। शहरी शौक से आम खरीद कर गर्मियों के इस लजीज फल से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सैयद मुबारक अली शमसी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खैरपुर टामेवाली की फ्रूट्स मंडियों में भी फलों के बादशाह आम की जबरदस्त एंट्री हो चुकी है। छोटे बड़े सभी लोग आम खरीद रहे हैं। आम लज्जत और जायके के लिहाज से गर्मियों का बेहतरीन फल है, जिसे छोटे बड़े सभी बड़े शौक से खाते हैं और पसंद करते हैं। खैरपुर टामेवाली में शहरी खुद आम खरीदने के साथ साथ अपने अजीजों और रिश्तेदारों को आम गिफ्ट भी करते हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद मुबारक अली शमसी, सच न्यूज, खैरपुर टामेवाली। गर्म तरीन इलाके सिब्बी में सूरज के आग बरसाना शुरू कर दिया। शहरियों ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया, जहां पर शहरी इमली आलू बुखारे का शरबत पीकर गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस कर रहे हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे उमर फारूक। चिलचिलाती धूप और मुसलसल बहता पसीना मौसम गर्मा की अलामत है। ऐसे में जिस्म की नमकियात को पूरा करने के लिए शहरी ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख करते हैं। सिबी में अमूमन इमली आलू बुखारे के शरबत दीगर मशरूबात के मुकाबले में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। गर्म मौसम में ठंडे मशरूबात के शौकीन हर जानिब दिखाई देते हैं। यहाँ आलू बुखारे का शरबत पीने के लिए आया हूँ। हम लोग सारा दिन यहाँ पे काम करते हैं गर्मी में, हम लोग ये पीते हैं, हमें गर्मी महसूस नहीं होती है। आज का दिन बहुत तेज और गर्म है। मैंने सोचा कि ये आलू बुखारा और अमली का शरबत पी लिया और इससे अपने गर्मी का जो शिद्दत है वो कम करने के लिए यहाँ आए। इमली आलू बुखारे के शरबत को तैयार करने के लिए इसके इज्जा इसके रंग की तरह ही लाल होते हैं, जिसमें इमली आलू बुखारा और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए तुखम मलंगा इस्तेमाल किया जाता है। ये इमली का शरबत है, इसमें आलू बुखारा मिलाते हैं, तुखम मलंगा मिलाते हैं, इमली मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं। ये गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे मशरूबात पीकर जहां शहरी गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस करते हैं, तो वहीं मौसम गर्मा में ठंडे मशरूबात से मुंसलिक अफराद का कारोबार भी खूब चमकता है। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज से बे। दरिया चनाब के जनूबी किनारे वाक़ कदीम शहर वजीराबाद की तारीख पुरानी। 1634 में गवर्नर लाहौर वजीर खान के एजाज में इस जगह को नाम दिया गया। इस शहर में अहद मुगलिया की कई तारीखी इमारतें हैं। ऐसी ही एक तारीखी इमारत का अहवाल बता रहे हैं वजीराबाद से राशिद महमूद। वजीराबाद दरिया चिनाब के जनूबी किनारे पर वाक़ एक तारीखी शहर है। 1634 में गवर्नर लाहौर वजीर खान के नाम पर इस आबादी को वजीराबाद का नाम दिया। वजीराबाद में कई तारीखी इमारतें हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुसम्मन बुर्ज की। 8 बुर्जों वाली अहद मुगलिया की खूबसूरत इमारत दरिया चिनाब के जनूबी किनारे पर वाक़ है। मुगल शहंशाह कश्मीर जाते हुए दरिया चिनाब में पानी के तेज बहाव की वजह से यहाँ ठहरते थे। जब पानी कम हो जाता तो लकड़ी के पेड़ों की मदद से दरिया अबूर करते थे। मुसम्मन बुर्ज की इब्तदाई तामीर वजीर खान ने शाहजहां के दौर में करवाई, जहां बेगम नूरजहां आकर ठहरती थी और उनके अलावा दूसरे कई शहजादे भी ठहरते थे, जिन्होंने महल्ला मयानी में काफी इमारतें तामीर करवाई। मुसम्मन बुर्ज की इमारतों में नस्ब लकड़ी के दरवाजे बेहतरीन नक्काशी और कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। महाराजा रंजीत सिंह की रिहाइश के आसार भी अभी नुमायां हैं। मुसम्मन बुर्ज में एक चौपाल भी है, जहां महाराजा और हाकिम वक्त
कचहरी लगाया करते थे। वजीराबाद शहर का तल्लक जो है वो तारीख के हवाले से बड़े सगीर के बहुत पुराने जो तारीखी शहर हैं उनमें इसका शुमार होता है और इसमें बहुत ही नादर और कीमती इमारत जो मुगलिया दौर में तमीर की गई वो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन महकमा औकाफ और गवर्नमेंट की अदम तवज्जोही की वजह से ये इमारत दिन ब दिन अपना हुसन खो रही है। तो हुकूमत को चाहिए और खासकर महकमा औकाफ को कि ये जो विरसा है हमारा कौमी विरसा है इसको संभालें, इसकी तमीर नौ तदीन और साइज करें ताकि ये मुस्तकबिल में आने वाली हमारी नस्लें जो हैं वो हमारी तारीख से आशना हो सकें। वजीराबाद एक खूबसूरत शहर है। इसकी तारीखी खूबसूरती बचाने के लिए हुकूमती अदारों के साथ साथ यहाँ के शहरियों को भी आगे आना होगा। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।